રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના જૂનાગઢ વિભાગના પ્રચારક છે. તેઓ શ્રી મંચસ્થ અધિકારીઓનો પરિચય કરાવશે. નમસ્કાર. ડોક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિ જૂનાગઢ અને વિદ્યા ભારતી ગુજરાત પ્રદેશના નિમંત્રણને માન આપી અત્રે ઉપસ્થિત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પરિચય જે વચ્ચે બેઠા છે શ્રીમાન પંકજજી સિન્હા, તેઓ સારા કવિ છે, સારા લેખક છે. તેઓ એમએસસી મેથ્સની ઉપાધિ ધરાવે છે. એમએસસી બીએડ સુધીનું એનું અભ્યાસ છે. મૂળ ઔરંગાબાદ બિહાર એ એમનું જન્મસ્થળ છે. 40 વર્ષોથી એઓ શ્રી સંઘના પ્રચારક છે. પૂર્વોત્તર રાજ્યના જે જનજાતીય પર્વતીય ક્ષેત્ર છે તેમાં છેલ્લા 40 વર્ષથી તેઓ અનેકવિધ જવાબદારીનું વહન કરી ચૂક્યા છે અને વર્તમાનમાં એઓ શ્રી વિદ્યા ભારતી નાગભૂમિના પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી તરીકેનું દાયિત્વનું વહન કરી રહ્યા છે, જેઓ આજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને એમનું માર્ગદર્શન આપણે મળવાનું છે. અત્યારે પેલા બેઠા છે શ્રી શામજીભાઈ દુધાગરા, બાલ્યકાળથી સંઘના સંસદ, તાલાલા તાલુકાના આંકોલવાડી ગામમાં હાઈસ્કૂલના તેઓ શ્રી પ્રાધ્યાપક પ્રધાનાચાર્ય હતા. હાલ સેવાનિવૃત્ત અને જૂનાગઢમાં એમનું નિવાસ સ્થાન છે. ડોક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિના એવો શ્રી અધ્યક્ષ છે તથા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ જૂનાગઢ વિભાગના એવો શ્રી માનનીય વિભાગ સંચાલકજી તરીકેનું દાયિત્વનું વહન કરે છે. જે છેડે બેઠા છે શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ વાછાણી, એવો શ્રી નિવૃત્ત બેન્કર છે. જૂનાગઢ ખાતે જેમનું નિવાસ સ્થાન છે અને વિદ્યા ભારતીના સોમનાથ વિભાગના એવો શ્રી અધ્યક્ષ છે. આપણી પ્રણાલી મુજબ પરિચય બાદ આભાર વિધિ. તો આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, પૂર્વાંચલનો પડકાર, આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે શહેરની વિવિધ સામાજિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ એનો સહયોગ રહ્યો છે. એ સૌના આ તકે આભાર માનું છું. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના શાસકીય અને પ્રશાસકીય અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારી મંડળનો પણ આભાર માનીએ છીએ. આ કાર્યક્રમની બહોળી પ્રસિદ્ધિ થાય માટે જૂનાગઢનું મીડિયા જગત,
પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા આ તમામ મીડિયા કર્મીઓનો પણ અમે આભારી છીએ. કાર્યક્રમ માટે પોતાનો કિંમતી સમય આપી તમામ પ્રકારે જે સહયોગી થનાર છે એવા નામી અનામી સૌ કાર્યકર્તા નાગરિકો સૌનો આભાર માની વિરમું છું. પરિચય બાદ સ્વાગત માટે હું વિનંતી કરીશ શ્રી શ્યામજીભાઈ દુધાત્રા, જેઓ માનની પંકજસિંહ સિંહાનું સ્મૃતિ ભેટ દ્વારા સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ શ્રી રણછોડભાઈ વગાસિયાને વિનંતી કરીશ, તેઓ પણ શ્રી પંકજજી સિંહાનું સન્માન કરશે. ત્યારબાદ ઉપલા દાતાર બાપુ પણ પંકજજી સિંહાનું સન્માન કરશે. સન્માન બાદ આજના આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સૌપ્રથમ ગીત કરશે વિપુલભાઈ ત્રિવેદી અને એમના સાથી મિત્રો. સંસ્કાર ભારતીના વિભાગ અધ્યક્ષ અને સપ્તક સંગીત વિદ્યાલય જૂનાગઢના સંચાલક તેઓ શ્રી છે. Swagana,
કરી ત્યારબાદ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ વાછાણીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી કાર્યક્રમની પ્રસ્તાવના રજૂ કરશે. નમસ્કાર. ડૉક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિ અને વિદ્યાભારતી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પૂર્વાંચલમાં આવેલ આપણો નાગભૂમિ, જેને આપણે નાગાલેન્ડ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેના વિદ્યાભારતીના માનનીય સંગઠન મંત્રી શ્રી આદરણીય પંકજજી સિંહાજી, ડૉક્ટર હેડગેવાર જન્મ શતાબ્દી સેવા સમિતિના અધ્યક્ષ અને જૂનાગઢ વિભાગ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના માનનીય સંઘચાલકજી શ્રી શામજીભાઈ દુધાત્રા, સામે બેઠેલા સૌ, નામ લેવા જઈશ તો સમય જશે એટલે નામ નથી લેતો, પણ જૂનાગઢના ગણમાન્ય શ્રેષ્ઠીઓ, આગેવાનો, સમાજ શાસ્ત્રીઓ, સમાજ સેવકો તેમજ શિક્ષા સાથે જોડાયેલા અને સામાજિક દરેક પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા લોકો, આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વિવિધ ક્ષેત્ર જેવા કે ભારત વિકાસ પરિષદ, ભારતીય મજદૂર સંઘ, VHP, એમ તમામ વિવિધ ક્ષેત્રના આગેવાનો, સામે બેઠેલા તમામ જૂનાગઢના નગરજનો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણી ભારત ભૂમિ લગભગ 1000 વર્ષથી કોઈને કોઈ રીતે બહારના અને અંદરના આક્રમણથી પીડાગ્રસ્ત રહી છે. છતાંય આપણી સંસ્કૃતિએ ગમે ત્યારે આળસ મળીને આ પડકારોને જવાબ આપ્યો છે. સંઘ આના માટે કામ કરે છે, ઘણી સમાજસેવી સંસ્થાઓ પણ આમના માટે કામ કરે જ છે કે સંસ્કૃતિના ઉત્થાન માટે, રાષ્ટ્રચિંતન માટે અને રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે મા ભારતીને સર્વોચ્ચ શિખરે બિરાજમાન કરવા માટે બધા કટિબદ્ધ છે. એમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રગલ્ભ એવા વિદ્યાભારતી અખિલ ભારતીય સ્તરે 1951થી કામ કરે છે. એની સાથે ગુજરાત વિદ્યાભારતી સંબંધ લગભગ છેલ્લા 40 વર્ષથી કાર્યરત છે. ગુજરાતમાં 476 જેટલી શાળાઓને સંલગ્ન કરી અને આપણું પારંપરિક શિક્ષણને, જે પાંચકોષીય વિકાસનું શિક્ષણ હતું, એ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપી અને આ સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. કહેવાનો અર્થ મારો એટલો છે કે દરેક સંસ્થાઓ કંઈક ને કંઈક કામ કરે છે. એનું લક્ષ્ય ડુંગરની ચોટી ઉપર, એટલે કે ભારત માતાને સર્વોચ્ચ શિખરે બિરાજમાન કરવાનો છે. રસ્તા અલગ અલગ હોઈ શકે. તળેટીમાંથી રસ્તો જતો હોય, આપણે ગિરનાર ક્ષેત્રના બધા જાણકાર છીએ કે ગિરનારની ચોટી પર જવું હોય તો 4-5 રસ્તાઓ છે, પણ તેનું લક્ષ્ય તો ગિરનારનું ચોટી જ છે. એ રીતે બધી સંસ્થાઓ ભારત ઉત્થાન માટે, રાષ્ટ્રચિંતન માટે અને રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે, સમાજના વિકાસ માટે કામ કરે છે. ત્યારે હું વધારે ન બોલતા માનનીય પંકજજી સિંહાજીનો આપણે અત્યારે એમના માર્ગદર્શનનો અને એમના વક્તવ્યનો લાભ લેવાનો હોય, મારી વાતને અહીં પૂરી કરી વિરમું છું. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. પ્રસ્તાવના બાદ આપણા આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા શ્રી પંકજજી સિંહાજીની વિનંતી કરીશ કે પૂર્વાંચલનો પડકાર, સમસ્યા અને સમાધાન એ વિષય પર આપણને માર્ગદર્શન કરશે. उपस्थित जन समुदाय, बंधुवर, श्रेष्ठ प्रवर मातृमंडली,
आप सभी को प्रथम विद्या भारती नागभूमि की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। जहां तक रही मार्गदर्शन की बात, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कोई मार्गदर्शन कर सकूं, किंतु सुदूर पूर्वांचल में कार्यरत रहते हुए जो प्रत्यक्ष अनुभूति की है, अनुभव प्राप्त किया है, वह आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर हेटवार जन शताब्दी सेवा समिति एवं विद्या भारती गुजरात प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए आदरणीय विठल भाई बाछानी एवं श्याम कुमार, आदरणीय श्याम कुमार दुधात्रा जी, आप सभी उपस्थित जूनागढ़ के नगरवासी, शिक्षा प्रेमी, और जिस प्रकार यहाँ पर पोस्टर में दर्शाया गया है, तो निश्चय ही उन बिंदुओं को केंद्रित करके आपके मन में यह भाव उठ रहा होगा कि यह कौन सी अशांति है, कौन सा आतंकवाद है, जातिवाद और भाषावाद के कौन सा षड्यंत्र है, जरा चलूं सुन लेता हूं। यह भाव लेकर ही आप लोग आए होंगे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं, या मैं जानता हूं, विश्वास होता है, अपेक्षा है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उससे भी अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज और देश की सुरक्षा और सनातन पद्धतियों, विचारों को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सभी संगठनों के कार्यों से सुदृढ़ करने का विचार जो संघ कर रहा है, उससे हम सभी जुड़े। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं, यह गर्व का विषय है, किंतु मैं वर्तमान में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से जुड़ा हूं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारत की प्रकृति के अनुकूल संपूर्ण देश में शिक्षा को पुनर्प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से ही कार्य करती आ रही है। यहां पर आप लोगों ने अंकित किया है कुछ बिंदु। मैं बिंदु के ऊपर नहीं जाऊंगा, समस्याओं का कोई वर्णन भी नहीं करूंगा। हमें अब समस्याओं का वर्णन करना भी नहीं चाहिए। हम तो अब समाधान के शीर्ष के ऊपर बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं समस्या जो उत्पन्न हुई इस देश में, विशेष करके पूर्वांचल में, उससे विशेष करके नागभूमि में, वह षड्यंत्र से भरा हुआ था। माध्यम हो सकता है कोई आतंकवाद, कोई जातिवाद, भाषावाद, कोई धर्मांतरण, किंतु उसके पीछे में कौन सा षड्यंत्र था, यह जानना आवश्यक है। उस षड्यंत्र को जान करके ही उसके समाधान पक्ष का तलाश, वही सुखमय होता है। मैं आपको ब्रिटिश के जमाने में लेकर चलता हूं।
हम सब जानते हैं, हम लोग का कई का जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद ही होगा। कुछ ऐसे यहाँ पर श्रेष्ठ बैठे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व हुआ होगा। ब्रिटिश ने जो कार्य किया है, छल कपट का जो काम किया है, जिसने इस देश के एक एक नागरिक को धोखा दिया है, ऊपर से कुछ और नीचे से समाज को तोड़ने का जो काम किया है, वह षड्यंत्र हम सबको जानना आवश्यक है। क्या होगा विकास? कभी कभी समाज में इधर उधर घूमते हैं तो लोग निकालते हैं, अरे ब्रिटिश के जमाने में बन गया, अब कहां बनेगा। यही तो हमारी मानसिक गुलामी है। हमने अपने गुण को त्याग करके बस उसके गुण को ध्यान में रख रहे हैं। ब्रिटिश शासन में उसने भारत के किनारे किनारे, विशेष करके पूर्वांचल के, विशेष करके नागभूमि के समाज को भारत से तोड़ने का बीज 1869 में किया था। 1869 में ब्रिटिश ने ईसाई मिशनरियों को उस भूमि पर बुलाया। हम नहीं चाहते कि ईसाई या धर्म की या पंथ की चर्चा करें, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो जानना आवश्यक है। एडविन विंटर क्लॉक अपनी धर्म पत्नी के साथ उस नागभूमि में आए। उसके पीछे ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें हर प्रकार का रास्ता दिया गया और वे नागभूमि, उस समय तो नागभूमि था नहीं, आसाम का ही क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इनर लाइन परमिट ब्रिटिश सरकार ने लगा दिया। क्यों? भारत के शेष समाज उस क्षेत्र में न आए और खुला द्वार हम धर्मांतरण का फैलाएं। लालच से, ताकत से, सेवा से, शिक्षा से उन्होंने उस समाज में धर्मांतरण का कार्य प्रारंभ किया। बंधुगण, 1872 में मात्र 15 नागा लोगों ने अब उनके धर्म, उनकी पूजा पद्धति को स्वीकार किया। आश्चर्य होगा जब उस समाज, नागा समाज की का स्वाभिमान का हम अध्ययन करेंगे और उनकी उससे अनुभूति करेंगे। मात्र 15 नागा समाज ने अपने को धर्मांतरित होना स्वीकार किया और उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई 1876 में, जो ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वहां की नागा समाज, सूरवीर नागाओं ने सामना किया। कोहिमा के, वर्तमान कोहिमा के पास फोनोमा, किदीमा ये सब क्षेत्र है। वह फोनोमा का रक्त रंजित इतिहास आज भी वह बताता है कि हमारे नागा बंधुओं ने कितनी सूरवीरता के साथ, वीरता के साथ ब्रिटिश का मुकाबला किया। प्रश्न उठता है कि 1876 में सूरवीर नागाओं ने ब्रिटिश के साथ जो युद्ध किया, क्या वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था? इतिहास के पन्ने में उस सूरवीर नागाओं के इतिहास को क्यों नहीं दर्शाया गया? यह हमें जानने की अनुभूति है। आज भी आप वहां जाएंगे, फोनोमा के पत्थरों पर उन सूरवीर का नाम, बलिदानियों का नाम होता है। यह हमें जानने की आवश्यकता है। दूर बैठे हुए हम नागा समाज कैसा है, यह हम आकलन नहीं कर सकते। हमने यहां पर सुना, हम जानते हैं, जूनागढ़ भी अगस्त में, 15 अगस्त में स्वतंत्र नहीं हुआ था।
उसको स्वतंत्रता मिलने के लिए नवंबर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या साधारण सी बात थी कि 15 अगस्त को या जूनागढ़ स्वतंत्र नहीं हुआ, नवंबर में हमको प्रमाण पत्र मिला? ऐसे षड्यंत्र ब्रिटिशों ने कुछ ऐसे भारतवर्ष के लोगों को साथ लेकर पूर्वोत्तर में, पूर्वांचल में भी षड्यंत्र की रचना की थी। 1815 में एक ऐसी नागा वीरांगना का जन्म होता है जिसका नाम गाय दिल्ली था। 13 वर्ष की आयु में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का जिसने नेतृत्व दिया, 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे नागा पर्वतीय क्षेत्रों में, और गिरफ्तार हुए। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब भी हम कुछ करने जाते हैं कोई न कोई पीछे से हमें खींचता है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ गद्दारी किया। फटा हुआ है हमारा इतिहास। वह गिरफ्तार होती है 17 वर्ष की आयु में, और भारत जब स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त को, तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। अक्टूबर महीने में मुक्ति मिलती है, अक्टूबर 1947। क्यों? सारे छुट गए थे, स्वतंत्र भारत हो गया था, जितने भी जेल में थे स्वतंत्रता सेनानी सबको मुक्ति मिल गई थी। नहीं, क्यों? उसके ऊपर ब्रिटिश ने टेररिस्ट का FIR कर रखा था, और जब अक्टूबर में वो छुटी 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसको आसाम, मणिपुर, पर्वतीय क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं थी। बेचारी 32-33 वर्ष की युवती जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन खपाया था, उसको 9 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ा। क्यों? ग्रेटर नागालैंड का बीज बोने वाला स्वतंत्रता के पूर्व ही रख दिया गया था, और ये रानी का दिल्लू नागा के क्षेत्रों में, नागा पर्वतीय क्षेत्र में हिंदू नागा, हिरक्का नागा परंपरागत अपनी पूजा पद्धति, अपने नियम रीति को चलाने वाला यह रानी मां गायत्री नेतृत्व दे रही थी। छोटी सी वो धार्मिक चीजें है, मैं सब विषय यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी रानी मां गायत्री, जिसको रानी मां के नाम से हम जानते हैं, इस गायत्री को 9 वर्ष क्यों अज्ञातवास रहना पड़ा? सौभाग्य था कि आसाम राइफल्स के उस समय ब्रिगेडियर थे, उस समय उनको पता लगा कि कोई ऐसी नागा युवती जो छिप कर रहती है, उनको संशय हुआ। वो गए, मिले, बात किए, उन दोनों ने अपनी भाषा में बात की, और उसके बाद फिर उनको समाज के सामने 9 वर्ष के बाद लाया गया। थोड़ी सी चर्चा रानी मां के बारे में आज करना चाहूंगा मैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद फिर से उस वीरांगना गायत्री को भूमिगत होना पड़ा। क्यों? नागा समाज के अंदर में उधर उग्रवाद की समस्या, और इधर जो परंपरागत नागा जो समाज है, जिसको हम तथाकथित हिंदू कह सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए वीरांगना ने पुनः स्वतंत्र भारत में आंदोलन खड़ा किया। हमारे समाजों को, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, हिंदू परंपरा को बचाने के लिए भारत सरकार हमको सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन भारत सरकार ने नहीं किया। ये सब इतिहास है। भूमिगत होकर के उन्होंने एनएससीएन के साथ में युद्ध किया, एनएससीएन उग्रवाद के साथ। नागा, हिंदू नागा समाज वह उग्रवाद से सामना किया।
स्टेडी अंडरग्राउंड होना, कालांतर में हुआ, समझौता हुआ होगा, हो गया सब है। ये उग्रवाद समस्या मिनी इंग्लैंड बनाने की बहुत बड़ी रचना ब्रिटिश का था, क्राउन कॉलोनी। आप लोग अगर माननीय सुदर्शन जी से परिचित होंगे तो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में क्राउन कॉलोनी की चर्चा है। उसकी पहाड़ियों में खदान, खनिज भरे हुए, यूरेनियम भरे हुए। उन्होंने षड्यंत्र किया था कि इसको हम ग्रेटर नागालैंड करके चिटमी नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र प्राचीन नैसा क्राउन कॉलोनी के रूप में हम इसको मिनी नागालैंड बनाए, मिनी इंग्लैंड बनाएंगे। ये सारी रचना षड्यंत्र किया गया था। यह है अशांत करने का बीज। यह बीज ब्रिटिश का बोया हुआ बीज, उसमें अपने देश के बोलना नहीं चाहिए, किंतु ऐसे लोग जिसके कारण हमारा पूर्वोत्तर, हमारा नागभूमि, हमारे नागालैंड के नागा समाज दूर, भारत के शेष भारत से दूर, उनको बताना पड़ा कि ये नागा ईसाई हो चुके, ये नागा कहते हैं भारत के अंग नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर की बात है। नागा समाज के हृदय में आज भी भारत मां का है। ये गलत है। प्रत्येक समाज में कुछ लोग दुष्ट होते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि संपूर्ण नागा ही भारत को प्यार नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उन क्षेत्रों में आगे से शिक्षा का काम करते आ रही है। 2004 से विद्या भारती गुजरात प्रदेश विद्या भारती नागभूमि के साथ कदम से कदम मिलाकर उस अशांत क्षेत्र, उस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम भारत माता की जय के संस्कार का गुंजन करेंगे। यह कार्य करती आ रही है। बंधुगण, इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, विद्यालय, इतनी लोग कहते हैं इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बड़े सम्मानित लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, किंतु शिक्षा के आड़ में मात्र हाथ में बाइबल देने का काम उन्होंने किया है। हम सोचते हैं कि बड़ी अच्छी इंग्लिश होगी, ये भूल है। गांव में आज भी वह युवा समाज कुछ वर्ष विद्यालय में जाकर पढ़ाई छोड़ देता है और गांव के पगडंडियों पर भटकते रहता है। और ये बात नहीं है कि वो चर्च भी नहीं जाता, उसका जीवन ही बर्बाद हो चुका है। विद्या भारती इन सारी बातों को अध्ययन करते हुए अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से, अपने औपचारिक शिक्षण संस्थान के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षण संस्थान के माध्यम से उन नागा समाज में, नागभूमि में भारतीय संस्कार कैसे जागृत हो, भारत मां की जय का नाद कैसे हो, राष्ट्रीय विचारों का विकास कैसे हो, अपनी नागा समाज अपने पूर्वजों की परंपराओं के प्रति स्वाभिमान से कैसे खड़ा हो, अपनी शिक्षा में, दैनंदिन शिक्षा में उसको जोड़ने का प्रयास किया है। हाँ, आपने देखा होगा ये वंदना हम नागभूमि में नहीं करते। हम नागभूमि में अपने विद्यालय में राष्ट्रीय गीत से आरंभ करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। वह जिसको हम दूर बैठे कह रहे हैं कि उन धर्मांतरित हो चुके हैं, वही बच्चे, वही समाज भारत माता की जय, जन गण मन करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः जीसस ने कहा है। 33 कोटि देव देवताओं के समक्ष
अगर एक वहाँ जेसस कुछ कर्म भूमि में नाग भूमि में खड़े हो जाते हैं तो हमारे समाज को क्या होने वाला है। लेकिन उस धर्मांतरित समाज जिसको ब्रिटिश ने षड्यंत्र करके शेष भारत के समाज से अलग करने का बीज बोया था, हमें उसको शिक्षा, सेवा और संस्कार, भारतीयता, भारत माता की जय के स्वभाव से उसको हम विकसित करने की आवश्यकता है, जो विद्या भारती करती आ रही है। संघ वैचारिक संगठन के सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। आज स्थिति बहुत अच्छी है। आप देखिए, कुछ वर्षों में कहीं एक गोली की आवाज सुनी है, कोई बम फटा है, किसी प्रकार की भाषावाद या शांत ऐसा वातावरण देश को सुनने को नहीं मिला है। वर्षों 40-50 वर्ष पूर्व से ही ऐसे बृहद क्षेत्रों में राष्ट्रीय विचारों, संघ के विचारों के संगठन, उसके कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्य को करते हुए सचमुच नागा समाज भारत माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखता है। यह जग जाहिर हो चुका है। विद्या भारती शिक्षा संस्थान शिक्षा के माध्यम से काम करती आ रही है। आप सबका सहयोग की अपेक्षा है। सहयोग का अर्थ क्या? यह समाज हर मामले में गुणी संपन्न है। आप आए, नाग भूमि में भ्रमण करें, नाग भूमि का अध्ययन करें, उस समाज के समक्ष बैठें, विद्या भारती के विद्यालयों में आचार्यों के साथ बैठें, विद्यार्थियों के साथ खेलें। विद्या भारती नाग भूमि के विद्यालयों में सभी बच्चे ईसाई हैं, आचार्य भी ईसाई हैं, हमारे समिति के सारे लोग हैं, लेकिन सब भारत माता की जय के नाद करते हैं। जनगण से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय विचार उनमें विकसित होता रहता है। तो आप सबका आह्वान करता हूं, आप आइए। द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाग भूमि के गांव बुझाजों में 9 दिन रहे थे। इसको भी छिपाया गया, इसको भी सामने लाया गया। आपको आश्चर्य होगा, जिस घर में नेताजी 9 दिन रहे आज भी वो सुरक्षित है। जिस घर में नेताजी जिस बिछावन पर सोए आज भी वो बिछावन सुरक्षित है। पूरा गांव धर्मांतरित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए मन में प्रेम है। क्या यह देशभक्ति नहीं है? ऐसे ऐसे सारी रचनाएं नागभूमि में है। आवश्यकता है आगे बढ़कर उनको गले लगाने की, और उनको अगर गलत दिशा दी गई है तो हंसते हुए प्रेम से, स्नेह से उनको साथ आगे बढ़ने के लिए सारी समस्या का समाधान इसी में है। और हम समाधान पथ पर बढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी समाधान और भी प्राप्त होगा। कुछ बातें हैं अधिकार 371A, ये सब तो षड्यंत्र थे, उसको भारत सरकार को विचार करना होगा। आज न तो कल उसको समाप्त करने के विचार करने होंगे। तो निश्चय ही वह नागभूमि, नागाओं का समाज, सूरवीर नागा इस भारत की बहुत बड़ी शक्ति लेकर खड़े होंगे, ऐसी आशा अपेक्षा हम रखते हैं अपनी अनुभूति और अनुभव के आधार पर। बोलने की इच्छा बहुत है, वे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने कुछ रखा हूँ, अनुभव कराने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद भी आपके मन में अगर कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, कुछ जिज्ञासा की भावना होती है, आप कुछ और विशेष जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी कई प्रश्न हो तो पूछी सकते।
ઊભા થશે તો ત્યાં માઇક પહોંચાડો. आपने बताया 371 वहाँ लागू है, तो उसमें क्या है 371 में? संपूर्ण अधिकार है व्यक्ति को, उस गांव के उस मुखिया गांव बुढ़ा को, कि वहां की सरकार भी उनकी जमीन नहीं ले सकती। वहां की भी सरकार, भारत सरकार को छोड़ दीजिए, वहां जो समाज जो बसता है उसके अतिरिक्त दूसरे लोग वहां पर जमीन नहीं कर सकते। सब जम्मू कश्मीर का जो है ये भारत सरकार ने नहीं किया है, ब्रिटिश ने किया है। भारत स्वतंत्र होने के बाद इसको क्यों नहीं हटाया गया, ये प्रश्न खड़ा है। हम क्यों सोए रह गए? हम दोषी है कि इतने वर्षों तक हम लेकर चलते रहे, वो समाज इसको नहीं चाहता है। जी हमारी केंद्र सरकार वहाँ पर कोई शिक्षा संस्था या ऐसा कुछ है क्या हमारी सरकार की ओर से? बहन जी, संपूर्ण देश में सरकारी विद्यालय गांव-गांव में, नागालैंड संपूर्ण देश में है, तो नागालैंड में भी होगा। नागालैंड में भी गांव-गांव में विद्यालय, वहां पर केंद्रीय विद्यालय भी है। वहां पर जो सेना आर्मी के जो कैंप है उसमें भी विद्यालय है। विद्यालय का अभाव नहीं है, शिक्षा का अभाव नहीं है, लेकिन शिक्षा की पुस्तक हमें क्या दे रही है? हमें वही दे रही है। हमें अपने परिवार से, समाज से, देश से काटा करना। तो विद्यालय तो ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, है विद्यालय। वैसी शिक्षा की आवश्यकता है जहां पर अपने देश की शिक्षा प्राप्त हो, भारत माता की जय हो, देशभक्ति की भावना हो, यह ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो हम सब विद्या भारती के माध्यम से, और भी कुछ राष्ट्रीय संगठन है जो इस देश में अच्छे काम कर रहे, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे, भारत सेवा संघ है, रामकृष्ण मिशन है, और भी ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हैं, लेकिन वो नगरीय में है, अंदर गांव में नहीं जाते। विद्या भारती और कल्याण आश्रम ये पूरे नागभूमि के गांव-गांव में जाते हैं। बाकी और भी संगठन है, लेकिन अभी तक वो नगरीय क्षेत्र में सीमित है। भविष्य में वो आगे बढ़ेंगे। मुझे कई साल पूर्व जो शासन के माध्यम से सरकार तो चलती है, मगर अनिष्ट लोग वैसे ही शासन चलाते हैं। उसी में कई 5-7 साल में कुछ बदलाव आया है। बदलाव तो शासन में आएगा ही। अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है तो राज्य में उसी पार्टी की सरकार होगी, तो उनको तो चलना ही पड़ेगा। वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है। उस पर ज्यादा हम कि हाँ बस सरकार को छोड़ दें कि अब आप ही का काम है, आप बदलाव करेंगे, आप विकास करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन हम अस्थायित्व उसको अगर मान लें तो वो अस्थायित्व नहीं हो सकता है। बदलाव है, भारत सरकार जिस दल को चलता है वो वहाँ भी है, लेकिन उस भाजपा की सरकार वहाँ नहीं है। भाजपा के 12 MLA हैं, उसमें हैं 6 मंत्री हैं, 6 एडवाइजर हैं, किंतु बहुत बड़ा परिवर्तन है ऐसा नहीं है। किंतु नागालैंड में विकास हो रहा है, वो भारत सरकार के प्रयास है। और कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मंत्री वहां नहीं रहते। कल भी हमारे वित्त मंत्री वहां थे, भारतवर्ष के 300 से ऊपर CSR वहां उपस्थित थे, सबके साथ लंबी चौड़ी बैठक हुई है। वहां पर कैसे उद्योग शुरू किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसकी सब योजना चल रही है। वो
कर रहे हैं और विकास रास्ते भी बन रहे हैं। मैंने रणछोड़ भाई को बताया, आप जब गए थे तो गड्ढे गड्ढे मिले थे, आपको गाड़ी का धक्का भी दिए थे। हमारे हर्षद भाई है, जामनगर के दिनेश भाई व्यास है, गाड़ी फंस गई थी, धक्का दिए थे। आज वो नौबत नहीं है, गड्ढा नहीं मिलेगा और यह विकास वर्तमान भारत सरकार का ही देन है। ये बात सही है, ठीक है। सर, हमें ऐसे जानने में आया था कि 98% तक वहाँ पे क्रिश्चियन है पब्लिक, और वहाँ पे जाने के लिए हमको टैक्स देना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चेकिंग होता है, हम कितने दिन रुकने वाले हैं उसके ऊपर भी हमको माहिती देनी पड़ती है कि इतने दिनों में हम चले जाएंगे। तो ये जो विकट परिस्थिति है, इसमें हम और क्या क्या विषम परिस्थितियाँ हैं उधर, उसके बारे में कुछ बताइए। आप 98 कह रहे हैं, मैं तो 99% से भी ऊपर पहुँचता हूँ ईसाई। ईसाइयत हमारी समस्या नहीं है। आप सोचे, पूजा पद्धति तो बहुत सारे हैं देश में, मानसिकता जो है वह समस्या है। वह मानसिकता जो है उनको इस प्रकार की बनाई गई है कि तुम इस देश के हो ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं हो सकते? नागा समाज तो हमारी भूमि के है, हमारे देश के है, हम अलग कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने पूजा पद्धति बदल दी है तो पूजा पद्धति जो बदल गई है उनके साथ में रहकर के फिर वापस आ सकते हैं। उनको हम भूमि से अलग कैसे कर देंगे? ये हमारी अवस्था। अब रही टैक्स की बात है। इस देश में भारत सरकार है, इस देश में उस राज्य की सरकार है, वो क्यों नहीं रोक पा रही? कारण क्या है? इन सब के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उन्हें जो उस क्षेत्र में अधिकार दिया है वही समस्या का है। आज तो जम्मू कश्मीर में समाधान हो रहे हैं, तो वो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये काम ठीक नहीं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो स्थिति है कि वो सब उग्रवाद, आतंकवाद ठंडे के रास्ते में चले गए हैं। अब जैसे छोटे छोटे स्तर पर सिंडिकेट चलते थे, अब सिंडिकेट जो है व्यापार में, हमें भी समझना पड़ेगा उसको बाधा कौन देगा, उसको कौन रोकेगा? तो वहीं के समाज रोकेगा। अब वहीं के समाज यह बात समझने लगे हैं और एक ऐसा स्तर खड़ा होने लगा है कि वो कहते हैं कि हम तुमको टैक्स क्यों दें। और अब ये नारा गूंजने लगा है कि एक सरकार एक टैक्स, नारा गूंजने लगा है। और वही खड़े हो गए कि हमारा राज्य है, हम नागा समाज के लोग हैं, हम उसको गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, इसको इलीगल भी टैक्स दे रहे, नहीं चलेगा। समाज अब रास्ते पर उतर चुका है। वही समाज जो समाज के लोग आतंकवाद के नाम से टैक्स देते हैं। दूसरी बात, हमारी भी गलती है। अगर कोई इलीगल टैक्स लेता है तो हम क्यों देते हैं? क्या हमारी गलती नहीं है? हम कहते हैं ना, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों गलत है। इसलिए खाली उनको टैक्स लेते हैं, हम डर से देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको स्वयं भी विचार करना पड़ेगा। अब ये विचार वहाँ है। बहुत लोग टैक्स देना बंद कर चुके हैं। अब कहते हैं कि भाई हम टैक्स कहाँ से देंगे, हम नहीं दे सकते। पहले बोलते थे तो गोली मारी जाती थी, अब बोलते हैं तो चुपचाप से चल जाते हैं। वातावरण बदल चुका है, शांति का वातावरण आने लगा है। लेकिन दोनों पक्ष को विचार करके चलने पड़ेंगे और शांति बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी बात ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उसके कारण टैक्स बंद हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं देंगे इसके लिए नागा समाज में ही लोग खड़े हो चुके हैं। बैठ के मीटिंग होने लगी है, पेपर प्रिंट मीडिया में आने लगा है
हम एक ही टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, बदलाव की ओर दिशा कदम लेंगे, तो बहुत जल्दी इसमें शांति आएगी। और सोल्यूशन जो है वो जिसको हम सुनते हैं NSCN सोल्यूशन वगैरह, तो हमारी भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी नीति से इसको आस्ते 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 जो है वह शांतचित करते जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें और हम भी सतर्क हो जाएं, तो इस मामले में ये भी समाप्त हो जाएगा। जी नमस्कार। प्रथम तो आपको प्रणाम करेंगे कि विद्या भारती के माध्यम से राष्ट्रीय बातों को लेके पूरा जीवन आप जैसे लोगों ने विश्वास किया है, इसलिए अभी ये बदलाव आया है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा विषय है पूर्वांचल का पड़कार, चैलेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हमने ये सुना है कि वहाँ कोई स्टेट ऐसे भी है जैसे त्रिपुरा, जहाँ जाने के लिए वीजा की तरह परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप लोगों ने ऐसे विकट परिस्थिति में ये जो काम किया है वो किस तरह से हुआ है और अभी भी जो चैलेंजेस है वो कैसे रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो धर्मांतरण की जो बात की, जो धर्म परिवर्तन हुआ है, पूजा पद्धति का फर्क बहुत मायने नहीं रखता है, और कभी राष्ट्रीय विचार जब बाहर से संचालित होता है, कोई पूजा पद्धति ऐसी भी होती है तो वो राष्ट्र की तरफ लोगों को जाने में रोक भी सकती है। तो वो चैलेंज को इस तरह से निपटा जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है। त्रिपुरा में कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक है नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम सबको कोई कुछ इनर लाइन परमिट लेना नहीं पड़ता। इनर लाइन परमिट जो लेना पड़ता है एक भय के वातावरण में हमको बनाना पड़ता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह नहीं है। जब अटल जी वहां गए थे तो वे पहले प्रधानमंत्री थे जो रात में रुके थे। जैसे आपने कहा रात में रुके थे यानी गले लगाया था, कोई पैसे और लालच देकर नहीं, स्नेह का, प्रेम का। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं है इनर लाइन परमिट, लेकिन कानून है, लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब रही चुनौती की बात है, तो चुनौती के हमारे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, अनेक प्रचारकों का बलिदान हुआ है। बलिदान होने के कारण समाज के लोग खड़े हुए। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र से हमारे अनेक वैचारिक संगठनों ने अपने अपने संगठन के नीति के आधार पर युवा समाज को, बच्चे को चयन करके भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा है। वो शिक्षा ग्रहण करके आए। यहाँ पर भी सील के कार्यक्रम में रीबी वाले भेजते आए, घरों में रहे, उन्होंने प्रेम स्नेह देखा, श्रद्धा देखी, उसका प्रभाव वहां पड़ा है। प्रेम ऐसा भी होता है, तो उसका भी, उस चुनौती को सामना करने के लिए अपने आप दरवाजे खुलते चले गए। राम जी ने केवट को गले लगाया था। चुनौतियों को सामना अगर हम सरकार के कानून से, ठीक है वो भी है, लेकिन वो समाज जो हमसे बिछुड़ता गया है, किसी न किसी कारण से वो रास्ते भटक गया है, उसको प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा से लगाना है। विद्या भारती की हमारी समितियों में जो कार्य करता है, मैं गर्व से आता हूँ। आप देखें इतनी अच्छी भारतीयता के संस्कार से काम करते हैं कि आप दंग रह जाए। व्यवहार, स्वभाव, प्रेम, श्रद्धा, यही चुनौतियों से सामना करने का रास्ता है। पूजा पद्धति उनकी कैसी है, एक छोटे से उदाहरण देता हूँ। नागा घर का, उस घर में जब मैं बैठा, उन्होंने बुलाया तो 20-25 महिलाएं बैठी थी। उन्होंने पैर हाथ धोकर आए
और अपनी भाषा में बुद्ध कुछ बोलते गए 20-25 मिनट तक। मुझे समझ में इतनी भाषाएं हैं कि समझना मुश्किल है। और अंत में उन्होंने हाथ उठाया और कुछ बोला और हाथ नीचे करके उठे, बाहर बरामदे में बाल्टी में पानी रखा था, उन्होंने हाथ उठाया, ऐसे से छिड़काव किया और बैठ गए। फिर जलपान जो है करने लगे। मैंने पूछा है क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, उसकी घर के वाले ने, ये हम लोग अपना ईश्वर को याद कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपकी ईश्वर तो जीसस है। तो उन्होंने कहा नकोबी वहाँ की भाषा में, नागामी में हैं, हमी लगा घोड़ लगा पूजा से रे, हैं, यानी मेरे घर की पूजा है। मैं घर में भूत प्रेत ना आए, बीमारी ना आए, इसलिए हम अपनी भाषा में जिस ईश्वर का नाम रखते उसको हम ध्यान कर रहे हैं। आप सोचो अंतर कहाँ है? दिल अभी वही है। तो किसी कारण से हुआ होगा। ये आशा अपेक्षा हम रखते हैं हम सब मिलकर के वो धीरे धीरे समझ जाएंगे, अपने आप को अपनी परंपरा में आएंगे। कल वहाँ एक ने पूछा था प्रश्न, उनको हिंदू कब वापस ले आएंगे, कब हिंदू बन जाएंगे? तो हमने जवाब दिया था पता नहीं सही है, हमें कि हिंदू में आने की आवश्यकता क्या है? वो जो सनातनी है, सनातन परंपरा में आए, पत्थर की पूजा करते हैं, पत्ते की पूजा करते हैं, केले पत्ते से अपना सब काम शुरू करते हैं। तो इतनी हिंदू की रट की आवश्यकता क्या है? वही तो हिंदुत्व है। सिर्फ मंदिर में जाना ही पूजा तो हिंदुत्व है नहीं। इसलिए अपनी परंपरा पर, अपनी सनातन परंपरा पर गर्व से, स्वाभिमान से वापस आ जाए, वही हिंदुत्व है। ये हमने जवाब दिया तो शायद और तो मन में बहुत सारी बातें उठेगी, रात भी है और कोई होगा तो आपने सरकार का दूसरा कौन सा टैक्स लगाते हैं? वो कौन लेता है? उग्रवाद लेते, NSCN के लेते, घर में बैठे हैं वो, और कलेक्शन करने वाले वो नहीं है, कलेक्शन करवाने हमारे ही लोग हैं जो चलता है। वो कलेक्शन करते हैं, उनको पहुंचाते हैं। इसमें बहुत कुछ खामियां हैं, तो इन खामियों को दूर हो गया है। अब मांग उठ गई है कि हम एक ही टैक्स देंगे सरकार। और जो उग्रवाद जो है वे भी अपने पास आते हैं, उग्रवादी वो समझ चुके हैं कि अब तो रास्ता नहीं है हमारे। कितने लोग को मारेंगे? समाज के लोग, भाई बहन बच्चे ही तो यहाँ जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वही बच्चे बाहर में जाके आते कहते कि हमको कितना अच्छा प्रेम मिला, कहाँ जाए? तो चुनौतियों का सामना करने का ही पता है। इसलिए अभी बहुत बदलाव आ गया है। आप आगे सुनेंगे कि टैक्स हम नहीं देंगे, ऐसा अब आने वाला है। मीटिंग शुरू हो गई कि हम एक ही देंगे। और सबसे बड़ी बात है, सुनते थे कि नागा समाज तो कोई इनकम टैक्स नहीं देता है, आज तो सब दे रहे। नीति ऐसी बन गई कि वो दे रहे, GST सबकी कट रही है ना। तो सकारात्मक भूमिका हमारी सरकार की है। सब एक समान दृष्टि रखकर हमको काम करना है, उसमें वो भी है तो वो भी चल रहे हैं। सर ये जो टेररिस्ट होते हैं उसका फंडिंग बगल की सीमाओं से आते हैं, चीन से आते हैं, म्यांमार होकर आता है, थाईलैंड के आउटसाइड चीन से आता है। ये सारी चीज वो पैसे देके खरीद देते नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे तंत्र और व्यवस्था में छिद्र हो चुका है, उसके कारण आते हैं। अब तो नहीं आ रहे, अब तो बंद हो गए, अब वेपन नहीं आ रहे। अब वो जो भी वेपन है उनके पास चल रहे हैं।
उनके पास जो कैडर है उग्रवादियों NSCN का, वो नौकरी कर रहे हैं, 10-20 हजार रुपये मिलता है, क्या करेंगे बेचारे, बेरोजगार बैठे हैं। हो सकता है कि भविष्य में वो सारे उग्रवादी कैडेट नागा रेजिमेंट्स के रूप में आ जाए भारतवर्ष। कारगिल युद्ध का विजय हमारा कैप्टन नागा नहीं दिलवाया है, कैप्टन केमरू से, राजपूत ताना राइफल्स का। और आज उसका इतिहास आप पढ़ें तो 16 गोलियां उसको लगी, एक लगता गया, ऊपर चढ़ता गया, और जब शीर्ष पर पहुंचा और नीचे से और उनके सैनिक चल रहे थे, उसी समय उसकी मृत्यु होती है। लेकिन राजपूताना राइफल्स के सारे सैनिक उसको उठा कर ले जाते हैं, ऊपर उसके हाथ से ही तिरंगा लहराते हैं और सब कहते हैं, नींबू साहब ये आपकी विजय है। नींबू साहब नागा कैप्टन नींबू ये सूरवीर नागा है। भटक गए हैं तो हम जरा उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, हमको निकाले, तो ऐसे लोग आ जाएंगे तो हमको करेंगे। विद्या भारती ने केंद्र को वहाँ पर हम तो साथ सज्जा करते हैं, विद्या भारती विद्यालय समर्पित किया है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। सकारात्मक विचार रखते हुए उनकी भूमिका को सकारात्मक बनाना ये हमारा काम है। ये पंकज जी का काम है नहीं, हमारे सब समाज का काम है। जो हो रहा है और सही दिशा में चल रहा है। चुनौतियों का सामना, नई चुनौतियों का सामना सकारात्मक रूप से होता जा रहा है। हाँ, गुरुजी, શિક્ષણની અંદર પરિવર્તન આવી અંતિમ પ્રશ્ન રહેશે. છતાં પણ ગુરુજી કહેવાનો મતલબ એ છે કે ત્યાં શિક્ષણની અંદર સ્થગિતતા કેમ છે? બાળકો છે એ શાળા છોડીને શા માટે રસ્તા ઉપર ભટકે છે? આટલું બધું પરિવર્તન હોવા છતાં. सही बात। हम तो 1835 में ही अपनी शिक्षा छोड़ दिए, उनको खाली दोष नहीं होगा। हमारी लिपियां, हमारी भाषा, हम जब खुद अपनी डायरी में, जैसे मैं डायरी शब्द बोल रहा हूं, तो हम रोमन और इंग्लिश में लिखते हैं, हम सभी। आप सोचो, 1835 में इस देश की शिक्षा को नष्ट कर दिया गया और यह लिखा गया कि अगले 60 वर्षों में काले अंग्रेज होंगे इस देश में। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जैसा बोलना नहीं चाहिए, अच्छे भाषा नहीं है वो दुनिया का, नहीं है। उन्हें चुरा करके सब किया है, हम सब जानते हैं। कब तक लेकर चले? तो इसलिए शिक्षा में बदलाव आनी चाहिए। आपकी बात को समर्थन करता हूं। हमारे घरों में गुड मॉर्निंग होने लगे, अगर हमारे घरों में गुड मॉर्निंग होने लगे तो नागा समाज के घर में अगर गुड मॉर्निंग होता है तो कौन सा गलत है? प्रश्न उठना चाहिए, उठना चाहिए। ये हमें सोचना है, क्योंकि और चर्चिल ने एक समय कह दिया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अपने इंग्लैंड के पार्लियामेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, योर इंग्लिश इज बेटर देन इंग्लिश मैन। और थोड़ी रुक कर उन्होंने कहा था विथ योर ट्रेडिशनल कल्चर। हमारी इंग्लिश हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के साथ जुड़ा होना चाहिए। इंग्लिश बोलने का, या जैसे मेरा नाम पंकज है, आप मुझे कहेंगे लोटस वेयर आर यू गोइंग, अच्छा लगे। हमने भारत को इंडिया बना दिया, हम नहीं बनाया, हमें सोचना पड़ेगा। तो शिक्षा जो हमें गलत दिशा देती आ रही है उसको सरकार ठीक करेगी ऐसा नहीं, हमें ठीक करना पड़ेगा। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसने प्रयास करना शुरू किया है कि मातृभाषा का शिक्षा पर बल दिया गया है। हम जितना स्वीकार करेंगे
शिक्षा में परिवर्तन आ जाएगा और भारत फिर भारत बन जाएगा। तो हमारे ऊपर में है, इसलिए आपकी बात का पूरा समर्थन मैं करता हूँ और आपके साथ ही मैं ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પંકજજી સિંહાજી આપણને નાગાલેન્ડ વિશે અને આપણા જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એના વિશે फिर से आप सबको साधुवाद देता हूँ और आह्वान करता हूँ, आप आए। जो विद्या भारती शिक्षा संस्थान के जो विद्यालय चलते हैं उनके आचार्यों के साथ बैठे, उनकी न्यूनतम जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान रखें। म्यांमार की सीमा पर 12 एकल विद्यालय खड़े हैं, 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर पर। विद्या भारती की योजना पूरे बेल्ट में 5 जिले म्यांमार की सीमा से लगता है और उस सीमा में लगभग 250 एकल विद्यालय की योजना बनाने की है। 2025 तक सब खड़ा करने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस विधायक गांव में है उसमें भी एक आवासीय विद्यालय की रचना है। विद्या भारती गुजरात प्रदेश से विद्या भारती के बच्चे विद्यार्थी, उनका हृदय उस संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा है। उनके आचार, उसकी समिति ट्रस्टी से जुड़े हुए लोग, लेकिन आवश्यकता है कि सर्व समाज उससे जुड़े, सिर्फ धन से नहीं, तन मन धन से। और जो व्यवसायिक क्षेत्र में लोग हैं वो भी आए, कैसे अपना व्यवसाय वहाँ खड़ा हो इस पर भी विचार करें। हम सब वहाँ खड़े हैं, हम आपके व्यवसाय के अंदर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आपकी पूरी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी